Hello learners, welcome back to my YouTube channel. So in our previous lecture we have discussed regarding central tendency, and under central tendency we have discussed regarding mean in our previous video. So mean, which is denoted by x bar. So in our today's video we will discuss regarding median which is denoted by capital M, and it is also known as positional average. So without wasting much of your time, let's start the video. So talking about the median is the central value of the distribution when the data is in an array. Suppose the data is in an array, means it in sequence. So it is the central value. Median is the central value of the distribution. So in layman language, we can understand what is median. It is the central value. So the middle value will divide the number of observation in the data into two equal parts. So median एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी मिडिल वैल्यू है जो हमारे ऑब्जर्वेशन की जो एरे है, जो हमारे पास डेटा है, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. उसको हम बोलते हैं मीडियन. और मीडियन को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज पोजिशनल एवरेज. और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मीडियन को? बाय कैपिटल एम. So this was about the introduction of median. So now we will discuss regarding its numerical part. So for calculating the median, we have formula which is n plus 1 by 2 th and n plus 1 by 2 th. This is for the raw data and this is for the discrete frequency table. So we will discuss one by one. So for the following, it is the first exercise, and here it's the problem for you. Following data gives the height of 5 students in centimeter. Find the median height. So you have an array here, array of data. So you have to calculate the median. So what is the formula? N plus 1 by 2 th value. So here n equal to number of values. So how many values are there? 1, 2, 3, 4, 5. In question also you have given the frequency which is 5 students. So 5 plus 1 divided by 2 is equal to 3. So in this array the third observation will be the median. So what is the third observation here? See, you have to count from here 1, 2, 3, and 1, 2, here it coming 3. So the median is 153. So this was about the if the data is in array form, you can calculate median by this method. So next, this is an exercise for you. You can calculate, you can take the screenshot of this particular exercise and you can solve it by yourself. So coming on the next portion. And for the discrete frequency distribution you have given x and f. So for example, आपको यहाँ पे इनकम दी गई है पर डे इतने रुपीस, और यहाँ पे हाउस होल्ड मतलब कि जो 5 घर हैं वो एक दिन में 100 रुपया कमा रहे हैं, 19 हाउस 150 एंड सो ऑन. सो इसमें हमको मीडियन निकालना है. अब इसमें हम मीडियन कैसे निकालेंगे? कभी भी आपको हमेशा याद रखना है, जैसे हम मीन में क्या करते थे? मीन में हम मिड पॉइंट निकालते थे जिसको हम एक्स स्मॉल एक्स से डिनोट करते थे. अब आपको मीडियन में क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट सी एफ. सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. कॉपी पेन आप साथ में ज़रूर रखिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सको. सो जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हो, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, नंबर ऑफ हाउस होल्ड यहाँ पे 5 दिए हैं, वो एज इट इज़ यहाँ पे आपको लिखना है, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो. जब आपको सी एफ कैलकुलेट करना है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी आपको वही फर्स्ट इस बॉक्स में लिखनी है. आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, 05 आपकी सी एफ आ गया फर्स्ट का. अब सेकंड में आपको क्या करना है? जो फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और जो सेकंड की फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड करना है. सो 19 प्लस 5 कितना हो गया? 24. सो ऑन, इसको आपको जैसे 24 आ गया, 24 प्लस 3 कितना हो गया? 27. 27 प्लस 11 कितना हो गया? फिर दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू. ऐसे करके आपको सी एफ निकालनी है. अगेन आई विल टेल यू, आपको फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ ही लिखनी है 05. सो इसमें आपको सेकंड में क्या करना है? 5 और 19 को ऐड करना है. यहाँ पे सो ऑन कोई भी वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 24. देन आपको 24 3 को प्लस करना है 27. सो आपका जो सी एफ है वो आ जाएगा. जैसे कि हम नेक्स्ट इसमें स्लाइड में देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे सी एफ ऑलरेडी
आ चुका है सॉल्व करके, सो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे हमने 5 लिखा एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया 5 19 को प्लस किया 24 आया, 24 3 को ऐड किया 27, 27 11 को ऐड किया 38, 38 6 को ऐड किया 44 एंड 44 9 को ऐड किया 53। सो दिस इज अवर टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड आपने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था m इज इक्वल टू n प्लस वन बाई टू, ओके। So n here will be the total addition of frequency, or you can say n will be the last value of the CF। अगर आप पूरी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे सो आपका फिर भी जो वैल्यू है वो 53 ही आएगी, और जो CF की लास्ट वैल्यू है उसको भी आप n में पुट ऑन कर सकते हैं। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। आइदर आप फ्रीक्वेंसी को प्लस कर सकते हैं सबको, इसका समेशन कर सकते हैं, या तो आपको टाइम सेव करना है, सो जो CF की लास्ट वैल्यू होगी वही आपका जो होगा n होगा। सो आपको स्टैट में टाइम सेव करना है, तो आई विल रिकमेंड कि आप CF की लास्ट वैल्यू जो है डायरेक्टली आप पुट ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। सो 53 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 54 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। सो हेयर इट इज़ अ 27th वैल्यू। सो एरे में जब हम था तो हमको एक एरे में हमको पता था कि थर्ड वैल्यू जो है वो हमारी जो मीडियन है, बट इसमें कैसे पता लगेगा हमको? सी हमारा 27 आया, सो हेयर CF कहाँ पे 27 आपका इस साइड में है, ओके। सो यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो कितनी है 200, सो दिस विल बी द मीडियन। ये आपका मीडियन हुआ। सिंपली आपको क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसमें n आपको CF का लास्ट वैल्यू ले सकते हो या तो फ्रीक्वेंसी का समीशन कर सकते हो। देन उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी आपको देखना है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई करती है, और जो उसका स्टार्टिंग का वेरिएबल होगा वही आपका मीडियन होगा। ये था आपके पास डिस्क्रीट डेटा से आप कैसे मीडियन को निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट ये आपके पास एक एक्सरसाइज है, इसको आप खुद से सॉल्व करिए। अब हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। आप कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन को कैसे निकाल सकते हैं? सो यहाँ पे आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। सो इसमें आपको मीडियन निकालना है। अब इसमें मीडियन आप कैसे निकालोगे, लेट्स सी। सो अगेन फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल सिमिलर रहेगा कि आपको CF निकालना है, और CF कैसे निकालना था? हाँ, यस बिल्कुल। यहाँ पे आपको फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है जो कि फ्रीक्वेंसी में है, एंड 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 3 23। सो ये आपकी टोटल जो है वो CF वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे CF वैल्यू आ गई। अब हमको पता है कि हमने पहले फॉर्मूला क्या पुट ऑन करना है, n प्लस वन बाय टू ऑब्जर्वेशन। सो n मैंने आपको जैसे बताया, या तो आप फ्रीक्वेंसी को एड ऑन कर सकते हो, इसका समेशन कर सकते हो, या तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू को पुट ऑन कर सकते हो। सो जब आप इसको पुट ऑन करोगे, सो यहाँ पे 12th ऑब्जर्वेशन में आपका जो मीडियन है वो लाई कर रहा है। बट अगर हम प्रीवियस सम की बात करें, सो वहाँ पे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही थी जो कि हमने 27 पढ़ी थी। बट यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो 12 आ रहा है बट यहाँ पे तो CF में 12 है ही नहीं है, अब हम क्या करें? सो इस सॉल्यूशन में क्या करना होता है आपको, जहाँ पे आपको क्लास इंटरवल्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे CF के पास। सो यहाँ पे हमको पता है 7 के बाद 12 के बाद 13 वैल्यू ही आ रही है। इसमें आपको सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी है CF में कौन सी आ रही है। सो जैसे कि हमने देख लिया कि हमारे पास 13 है, सो आपको इस डेटा के साथ वर्क करना है, जो कि आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है। आपको सिर्फ इस डेटा के साथ वर्क करना है, बाकी सब आपका जो है उसमें आपको कुछ भी नहीं देखना है। अब ये चीज़ मेरे कहने का क्या मतलब है, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। जो हमारा L1 है वो हमारी लोअर लिमिट है, n हमारे पास जो कि मैंने आपको पहले बताया फ्रीक्वेंसी का समीशन है, या तो आप CF ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास CF क्या आया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड I हमारा क्या आया, डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स। सो वन बाय वन मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूँ कि लोअर लिमिट कौन सी होगी यहाँ पे। सी जो हमारा पिछला पर्पस था इस क्लास इंटरवल को सिलेक्ट करने का, वो यही था कि हम इसमें जो फॉर्मूला में वैल्यूज हैं वो ऐड कर सकें प्रॉपरली करेक्ट, जिससे आपका कि जो आंसर है वो प्रॉपर आए, करेक्ट आए। सो इसमें लोअर लिमिट इस इंटरवल की कौन सी है, 30। जो फर्स्ट लिमिट होती है वो लोअर लिमिट होती है, एंड जो सेकंड होती है वो अपर लिमिट होती है। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ?
यस। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला में 30 हमने लोअर लिमिट पुट कर दी। अब एन कितना है हमारे पास, 23, 23 हमने पुट कर दिया। अब हमारे पास सी एफ कितना है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि सी एफ तो इसमें 13 है, हम यहाँ पे 7 क्यों लिख रहे हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आपको आएगा जहाँ पे आपको मीडियन कैलकुलेट करना है और क्लास इंटरवल्स दिए हैं, आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा आपको प्रेसीडिंग क्लास की लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की लेनी है जो उससे पहले है। और यहाँ पे आप पुट ऑन करोगे 7 और एफ फ्रीक्वेंसी आपको सेम क्लास इंटरवल की लेनी है जहाँ पे आपका मीडियन लाई कर रहा है, इसी की फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है। और आई क्या हमारा डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स। सो यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 30 और 40 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये हमने डिफरेंस निकाला और ये हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दिया। जब फॉर्मूला को हमने सारा पुट ऑन किया, सो ये जो हमारा मीडियन है वो हमारा आंसर आ गया विच इज 37.5। सो मेन आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि जो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है वो प्रीसीडिंग क्लास की लेनी है जो इससे पहले है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम क्लास की लेनी है। सो इजी है बिल्कुल, इतना टफ भी नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्शन अचीव कर सकते हैं। सो फॉर्मूला आप ये नोट डाउन कर लेना, L+1 n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। अब आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, मैंने प्रीवियस लेक्चर में मीन का भी बताया था, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। सो इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसको आप न्यूमेरिकल है आपके लिए। सो दिस वाज अबाउट द मीडियन, बहुत ही इजी है, इतना टफ भी नहीं है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।